Yes, I did. Okay, great. Is anyone Suraj bhai, I else? have a question. Yes. Yes. When we do the pinging for global to global, how many machines we can connect? Any round figure like 10 machines, 20 machines, or unlimited You're not connecting machines, you're connecting networks. in networks? Right? You have connected networks. You have made the connectivity between network. So whatever Okay. capacity is there for your network, all of those machines, all resources, it's not only virtual machines. We are practicing virtual machine just because we have been dealing with virtual machine. Otherwise, any storage account or APIs or any resource, whatever is there, you will be able to connect between, make a connection between them. And that Got it. to get that exact number, I told you guys to watch the videos which I have created on Cider. Uh, while others are still joining, I'll quickly explain it to you how it looks, and it has nothing to do with our VPN or anything. If you want to see कि एक virtual network में कितने machines आने वाले हैं, that you can see here. But to understand it well, you'll have to watch my videos on Cider, my videos or any videos. So let's say that if I am creating a new virtual network, तभी डिसाइड हो जाता है ये when a company is being created or something is being migrated etc. इस तरह से कुछ होता है. So उसी टाइम डिसाइड हो जाता है that okay इतने हम लोगों को IPs लगने वाले हैं, this is what will happen, और maybe इस डिपार्टमेंट के लिए इतने IP लगेंगे. So let's say department 1, I'm planning to have department wise VNet. So department 1, I think how many IPs will I require? मेरा बोलना है कि डिपार्टमेंट 1 में डेवलपमेंट के मशीन 500 हो गए, टेस्टिंग के 200 हो गए, XYZ होगा, इतने यूजर्स हो गए, ये सब करके आई केम टू अ फिगर. दिस विल बी डन बाय आर्किटेक्चर टीम. ठीक है. फ्यूचर यूजर्स कितना होगा, आपका पिछले 5 साल का डेटा कैसे ग्रो हुआ है, एम्प्लॉयज कैसे ग्रो हुए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे बढ़ा है, नंबर ऑफ सर्वर कैसे बढ़ा है, बेस्ड ऑन दैट फोरकास्टिंग की जाएगी कि नेक्स्ट 5 years में कैसे होगा. जो भी उनको करना होगा, दे विल डू इट एंड दे विल कम अप विद अ नंबर, एंड लेट्स से दैट नंबर इज 5000 के आज को मिलाकर और फ्यूचर. वी विल ऑलवेज थिंक अबाउट फ्यूचर कनेक्टिविटी. ठीक है. आज का और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को मिलाकर आई थिंक 5000 IPs आई रिक्वायर्ड फॉर वन VNet. ठीक है. सो while creating this VNet, you will never ever take this जो अपना by default आता है, कभी नहीं लेते हो आप वहां पर, but I told you आप लोगों को ये सब मिल जाएगा. So you'll decide कि कौन सा IP आपको ये करना है. Okay, you thought चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं, and then you will start using the Cider blocks. किस address spacing यहाँ पर आपको दिखेगा. See, if I use /32, I'm getting only one IP address. If I'm using /31, I'm getting two. इस तरह से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं. What is my requirement? 5000. ठीक है. So what I can do depending on the nature, अगर 5000 एकदम कट टू कट है, so I will never ever go for 4096. कम मैं कभी नहीं जाऊंगा. Which is the next number available near to 5000, which is available for me? 19. Yes, 19. जहाँ पे मुझको 8000 मिल रहा है. So 3000 IPs वेस्ट होंगे, but that is doable for me. मैं वेस्टेज बेयर कर सकता हूँ, बट कम IPs से मेरा पूरा एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगा. बट कब? जब हमने एकदम कट टू कट डिसाइड किया है. बट डिड वी डू दैट? नो, वी कंसिडर्ड फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कि बाद में आगे जाके बढ़ेगा, तो 4 IP से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला. इन दिस केस आई कैन टेक दिस वन. तो यहाँ पर अभी आपने ये ले लिया ना. सो यहाँ पर यू आर यूजिंग 4096 IPs इस साइडर रेंज के हिसाब से. आप 40. नाउ आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन व्हाट इज साइडर रेंज. यू गाइस विल हैव टू वॉच वीडियोस, watch my videos, watch any videos. साइडर समझने के लिए, and even if you don't understand, that is fine. ठीक है. but this is the logic of your logic of the answer to which against your question जो आपने पूछा कि कितने कनेक्ट कर सकते हैं. सो VPN में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने कनेक्ट कर सकते हो, बट देयर इज अ लिमिटेशन कि कितने हो सकते हैं आपके वर्चुअल नेटवर्क में. Get it? Did you get it, Satyavan? Okay, इसमें एक और चीज है. I wanted to show it to you guys. Good, you asked the question, so we can start from today. The another topic. इसमें बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, but sometimes they ask the question. इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से इसको याद रख लो. I will add it to today's questions also. Guys, I hope you guys are reading these questions. लग नहीं रहा मुझको, because we are doing थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बट अगर हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो 6 महीने में भी जॉब नहीं लग रहा आप लोगों को. राइट. सो थोड़ा स्पीड आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी. सो आई होप यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एंड एवरीथिंग. तो कल के इसमें मैंने काफी क्वेश्चंस ऐड किए थे.
I've shared it on WhatsApp also, and I keep updating the file here also. किसी का WhatsApp message miss हो गया है, नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, I keep adding everything here. This is the OneNote. सबके पास आपके ये है. This has been completed. I'll remove it. इसमें एक चीज pending है. I remember that, so I'll remove it. ठीक है, जिसके हर एक के पास OneNote का access है, read only. You come here, you come to this January batch question and task. यहाँ पर आप देखो मैंने सारे questions रखे हैं, right? And these are the latest question. Explain Azure logs, scope, and types. So now if I ask someone, one of you to explain it, who can do that? Anyone? I don't want to take name. Any volunteer is fine. Could you explain me Azure logs, scope, and types? Isaac bhai, would you like to try? What's all? Explain Azure logs, scope, and types. Have you ever worked on Azure logs? Can you explain it to me? What is Azure log? I mean, this is how an interviewer will ask you. What is Azure logs? What is the scope or types and types? And sometimes guys, they will not mention everything. ठीक है, interviewer पूरा खुल के question नहीं करने वाला. He'll just say, what do you know about Azure logs? You have to make sure that you're talking about Azure logs. You're talking about its scope and types. So yes, Isaac bhai, can you explain what is Azure logs, scope, and types? Azure log, we can prevent the accidental delete of resources, Mm-hmm. objects, and that types means they read only, read and delete. There are two types of logs. What is the difference between read only and delete? Read only means we cannot delete the VMs, and delete the user can modify the resource. What is the Resource. scope? What is the scope for this? Or Azure logs? Scope. That's okay. Well try. Good answer. I'll just quickly share my observations. Okay. You can mute yourself, Isaac bhai. So guys, see, I am sure Isaac bhai को पता है what I'm asking. He just doesn't know the jargon. Scope से मेरा मतलब यहाँ पर where can you apply them? So scope है resource group, resources and subscription. Scope का हमेशा मतलब होता है कि किस चीज पे ये apply होता है. That is the reason I keep saying you कि jargons को भी आप लोग याद करो. One quick correction. आपने जो read only और delete का definition बोला वो twist हो गया, उल्टा हो गया. Delete अगर आप लगाते हो, so you cannot delete the resource but you can amend it. Read only लगाते हो तो you cannot do anything. Amend भी नहीं कर सकते हो, machine को turn off भी नहीं कर सकते हो, turn on भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. Here the recording again, आपने इसको उल्टा बोल दिया. But I'm sure concept आपका clear है. So guys, this is what I'm talking about. Answers को practice करो आप. Interview में कोई आपके पास screen share नहीं करेगा. कोई आपसे PhD level के questions नहीं करने वाला. In depth, logic ये सब नहीं पूछने वाला है. Simple एक theoretical question है, theoretical answer देना है. That's all. That's the simplest way to crack your interview. Do not make complicated for yourself. ठीक है, well done Ishaq भाई. Just थोड़ा सा उसको amend कर लो आप and keep practicing guys. That is the reason I tell you to ask questions. Do not type questions. I want you to speak. This is the place where you practice. Interview is not the place where you practice. This is the place. आप 4 बार गलत बोलो, आप 8 बार गलत बोलो, doesn't matter. या तो मैं correct कर दूंगा, कोई और correct करेगा, but you will learn. इंटरव्यू में जाके आप ये नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, कंपनीज ब्लॉक पे ब्लॉक करते जाओगे आप, एंड डिसअपॉइंटमेंट अलग से होता है. सो डोंट डू दैट. सो आई होप यू गाइस आर रीडिंग. आई एम नॉट गोना आस्क ऑल दीस क्वेश्चंस नाउ, टाइम उसमें काफी कंज्यूम हो जाएगा. सो आई होप यू आर फेमिलियर विद व्हाट इज VNet peering and types of peering, right? Are you guys reading it guys? Shikha, can you answer this? VNet peering and types of peering. Can you hear me, Shikha? If you're speaking, you're on mute. Yes, Sohil. Yeah. So Sohil, actually, I haven't done these questions. No worries, no worries. That's okay. Mansha, VNet peering and types of peering.
Mansha, do we have Mansha? Nitesh, would you like to try? Yes. Yeah, please. VNet peering and types of peering. Types you- of peering like global peering or local peering or uh, connect to VNet is known as VNet peering. Okay, good answer. But I have always told you guys, do not answer in jargons or do not, sorry, not jargons, in keywords. सिर्फ keywords बोल के मत छोड़ दो. नितेश का आंसर perfectly correct है, but नितेश भाई आपको sentence बनाना पड़ेगा. ठीक है. Here Yeah, I yeah. can understand कि यार आपका concept clear है. Interviewer आपके लिए उतने efforts नहीं लगाने वाला है. आंसर आपका perfect है, but इसको थोड़ा सा sentence में ये करो. कि yes, yes, I know. I have worked on VNet peering. VNet peering is something when you want one virtual network to connect to another virtual network for some business requirement or some need. By default, they cannot talk to each other. थोड़ा सा अपना information को add करो. इंटरव्यूअर को Okay, लगना okay. चाहिए कि यार इसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है. आप वन वर्ड देकर छोड़ दोगे ना, इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस आता है दैट यू डू नॉट नो इट, एंड देन ही विल कम अप विद अनदर क्वेश्चंस. आप उसको अपना कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि उसको पता लगना चाहिए कि यार इसको ये टॉपिक अच्छे से आता है, मूव ऑन टू अनदर टॉपिक. कभी कभार वो खुद थोड़ा सा ये फील कर लेगा कि आई थिंक कैंडिडेट को मुझसे ज्यादा आता है, लेट्स बेटर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. राइट. सो जितना आपको पता है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो. यस, आई हैव वर्कड ऑन VNet peering. VNet peering we required because by default virtual networks cannot talk to each other, but if there is some business requirement that two virtual networks should talk to each other, resources in two virtual networks should talk to each other, we use VNet peering. VNet peering, there are two types, global and local. When both virtual networks are in same region, they are called local. When both when two virtual networks in different region, they are called global. इस तरह से आप एक आंसर दोगे ना, what Nitesh said, it is exactly what I am saying. Same है आंसर, correct है, but it is just a way of saying, right? So you'll have to learn कि आप उसको आंसर अच्छे से एक सेंटेंस में तो फील आना चाहिए कि आप लोगों ने काम किया है. Okay, bye. Can resources same can resources in same VNet talk to each other by default? Nelson, can they talk to each other by default? No, sir. Can resources in subnet talk to each other by default? Leo? No, I think Leo's mic is not connected. Wait, let me. No, Ibrahim, I'll have a separate question for you. That's okay. I hope you guys understood. I mean, looking at the name, I can see that this is very simple and everyone have understood, right? That subnets, resources within the subnets, they can talk to each other. Same subnet and did you say no for this? Can resources in the same VNet talk to each other? Nelson, was that a no or yes? Nelson, can you hear me? Guys, can resource in the same VNet talk to each other? Anyone who can answer? No, Yes, we well, not cannot no. talk to each other by default. We need to do the peering. No. In No, order Murtaza. to, Murtaza, yes. do not complicate questions for yourself. Read the questions again. Read the question again. Okay, What is the sorry, question? sorry. Can the Yes. resource in same VNet? Okay. Yes. My सेम bad, I VNet का didn't मतलब read क्या it. होगा? मतलब या तो सेम सबनेट में होगे या मैक्सिमम दो. सी व्हेन आई से सेम VNet, इसमें आपके दो सिनेरियो बन जाएंगे. क्या होगा? या तो डिफॉल्ट सबनेट में सारे रिसोर्स होंगे, देन आई एम आस्किंग कि भाई सेम VNet में और सेम सबनेट में, या तो मल्टीपल सबनेट्स में होंगे. एक VNet के अंदर या तो एक सबनेट हो सकता है या मल्टीपल सबनेट्स हो सकते हैं, राइट? बट इन Yes. बोथ केसेस आपका आंसर चेंज हो रहा है क्या? No. नो. The answer will be the आंसर इज same. यस. आंसर इज यस कि VNet के अंदर जो रिसोर्सेस है, दे कैन टॉक टू ईच अदर. द क्वेश्चन इज नॉट कि दो VNet एक दूसरे से बात कर सकते क्या. द क्वेश्चन इज रिसोर्सेस इन सेम VNet. एक VNet के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है, एक VNet के अंदर 5 सबनेट है, 5 सबनेट में हर एक में 5 मशीन है. कैन दे टॉक टू ईच अदर? दिस इज द क्वेश्चन, इलैबोरेटेड क्वेश्चन. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट? Yes, sir. So the moment I say VNet, उसके बाद सबनेट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बेसिक रह जाता है दिन आपके लिए. I have just put it to create some confusion किसी तरह का ये, या इसीलिए कि बहुत जल्दी किसी चीज पे आप कंक्लूजन पे जंप मत करो. Hear it well, क्वेश्चन को अच्छे से समझो. नहीं समझ में आता है, ask your interviewer to repeat it, or maybe you repeat the question. अगर पूछना ज्यादा आपको ये लग रहा है ना कि यार रूड थोड़ा साउंड हो रहा है, you repeat it. Well, as I understood, you're trying to ask that resources in same VNet
could be in different subnets or same subnet, can they talk to each other? So yes, they can. इस तरह से, ठीक है guys? Because this training, guys, it's not only technical. On day one, I have told you that we are doing a job oriented and interview oriented training. So I will keep doing this. I hope no one minds about it, right? I have discussed this very clearly on day one. When I'm cross questioning you or when I'm stopping you, this is not because you're wrong or right. इस तरह से कुछ नहीं, brainstorming हम लोग कर रहे हैं. And ऐसा होता होगा, and this will help you for sure. Okay, can we do the VNet pairing in different? Asif bhai, have you watched the videos? Are you up to date or are you lagging behind on videos? No, bhai. सारे I देखे आपने? didn't get the time. अच्छा नहीं देखे. Okay, that's okay. नहीं. Then I won't ask this question to you. Fine guys, I'll stop with the questions. Coming back to this one, जो सतार भाई ने question पूछा था, IPs का usage. I'm sure आप लोगों ने videos देखना start कर दिया होगा. नहीं देखा है तो please do सोहेल it. भाई, Yes. आखिरी का क्वेश्चन नहीं समझा मुझे, वो ट्रबल शूट वाला. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. Okay. Who can answer that? Well, by I can. Yeah, please. What are the steps you Ibrahim, will follow? let Salman bhai wait. Let Ibrahim answer. Ibrahim bhai, you there? Yeah. What are the steps? What are the steps will you follow to troubleshoot if two Windows virtual machines in a paired VNet are not talking to each other? This one. Sorry, I don't remember this one. No worries. I'm not Salman bhai. this one. Yes, well, by so first of all, we have to turn off the firewall of the both machines. Okay. The first step, very first step, you are saying turn off the firewall. Okay. Next. Next, we have to check the host name, and we have to check the IPs of both machine and try to ping. IP and ping. Okay. Fine. You have done this. Okay. But how much time do you think you will spend on this one? You'll take remote of customers machine. I mean, you don't literally take it, but let's say in case of support, you're doing it. कितना टाइम जाएगा आपके हिसाब से ये तीनों चीज करने में एक लाइव एनवायरनमेंट में? ठीक है, प्रैक्टिस में इट्स वेरी इजी, आपने इमीडिएटली कर लिया, ये सब कर लिया, उसका काम भी रुका रहेगा उतनी देर, राइट? हाउ मच टाइम डू यू थिंक यू विल स्पेंड ऑन दिस, ये सब करने में? हाफ एन आवर एटलीस्ट? Yes. Okay. After spending half an hour of yours and after spending half an hour of your client will say, Salman, you're doing this and it is not working on this machine. Let's say that this question was related to machine A to B. A और B बात नहीं कर पा रहे, right? आपने half an hour अपना और client का spend कर लिया और नहीं चल रहा है. A client will say, यार it is not working on this. Let's try on CND. CND पे ये सारे troubleshooting try करो. He'll say why? He'll say CND में भी बात नहीं हो रही है. He'll say what about other machines? He'll say नहीं, किसी पे भी बात नहीं हो रही है. Are you getting it? Probe का sequence आप समझ रहे हो? Then you realize after spending half an hour आपको realization हुआ कि दो virtual network में ही connectivity नहीं है. So did you even have to go till firewall? No, bhai. So for Faisal that, bhai, are you we have getting to it? check VNet pairing. Yusuf bhai, एक मिनट. Faisal, are you getting it? Approach सही है आपका, but are you getting it कि कहाँ से शुरू करना है? Salman? Yes, Sorry, well, bhai, Salman yes. answered or Faisal answered? Which one? Sorry guys, I could not see Salman. this. Salman. So Salman bhai, are you getting it? I thought Faisal bhai answered. Yes, yes, Right. yes, So bhai. see, आपका ये approach सही था, but इससे पहले एक simple चीज क्या करोगे आप? How many machines are there in that VNet of your team? वैसे तो thousands हो गए, हर एक पे उसको access नहीं होगा. आपकी टीम के कितने machine हैं? से 6 या 7 machines हैं. What about other machines? Are they able to talk to each other? He says yes. तब आप जाओगे इस वाले ट्रबल शूटिंग पे. मतलब आप नहीं करते हो, मैं जस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही says कि VNet पेयरिंग, वो दो मशीन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, being an Azure administrator आपका काम हो गया. Simple answer. You are saying in same VNet, machine A and B are not able to talk to each other, but in same VNet, machine C and D, they are able to talk to each other. आपका काम हो गया यहाँ पर. As far as VNet pairing is concerned, ठीक है? Granular इस पे आता हूँ मैं, उसमें हम बाद में बात करेंगे कि और क्या आप चेक कर सकते हो.
बट क्लियर है यहाँ पर, जैसे ही वीनेट में 2 मशीन बात कर पा रहे हैं, इट्स डन, योर जॉब इज डन। ये ट्रबल शूटिंग सिस्टम एडमिन के लिए है, यू डोंट हैव टू डू इट। बट इफ ही सेज कि नहीं वीनेट पेयरिंग पे भी नहीं हो रहा है, देन व्हाट विल यू डू? अब आई डोंट थिंक सो मेरे पास कोई वीनेट पेयरिंग है। एनीवन हैज वीनेट पेयरिंग इन देयर एनीवन हैज वीनेट पेयरिंग इन देयर सब्सक्रिप्शन गाइस? मैंने बताया था कल आप लोगों को कि वहां पर जाके आप देखोगे वो सिंक्रोनाइज हो रहा है, हेल्दी है या नहीं है। डू यू गाइस रिमेंबर? इफ नॉट एक Yeah. कल का वीडियो देख लीजिए, ठीक है? Well, let me see if I have 2 virtual networks. I'll do a peering quickly and I'll show it to you. So Nitesh, did you get your answer? कि क्या क्या ट्रबल शूटिंग आप देखोगे? फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग, यू विल सी कि आप बाकी मशीन्स जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Okay. नेक्स्ट थिंग, अगर वो सब बाकी मशीन्स बात कर रहे हैं तो आपका पेयरिंग परफेक्टली चल रहा है। अदरवाइज कोई भी मशीन बात नहीं कर रही है, देन यू कैन कम हियर एंड चेक दिस वन कि यहाँ पर क्या स्टेटस बता रहा है। इज इट अपडेटिंग, इज इट ब्रोकन, इज इट अनहेल्दी? इस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पर आपको दिखेगा इज इट फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड। यहाँ पर ये देखिए पेयरिंग स्टेटस अपडेटिंग है तो ऑब्वियस है कि नहीं चलना है, अनहेल्दी है तो नहीं चलना है। ठीक है, थोड़ी देर में हेल्दी हो जाएगा, स्टेटस अप टू डेट हो जाएगा। एंड इफ दैट इज फाइन तो आपकी ट्रबल शूटिंग उसमें हो गई। अगेन गाइस, आई हैव बीन टेलिंग यू कि यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टीम। आप नया बना रहे हो, ज्यादा लोड नहीं लोगे इसका। नहीं बन रहा है, आपने अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है, यू आर नॉट वर्किंग, अपने आपको नहीं बता रहे हो कि यू आर वर्किंग अंडर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, राइट? नहीं चल रहा है, सिंपल। या श्योर नेल्सन, या इज इट विजिबल नाउ? आई हैव zoomed it, राइट? नहीं चल रहा है, delete it, create new one, simple. Now it is say, now can you see it has changed to connected. So these are the troubleshooting steps you will do. Clear hai guys to everyone? Okay. Yes, sir. Now before we move to the next topic, the new one, इसी से related है, but उसके बीच में मैं एक छोटा सा आपको एक information share कर देता हूँ। Again, everything is related to network because now Sitar bhai has asked the question कि number of servers वगैरह कैसे decide होता है। तो मैंने बता दिया आपको कि वहां पर कितने सर्वर्स मिल रहे हैं मुझको। If I select that, ये वाला रेंज में सेलेक्ट करता हूँ, I hope it is still there, virtual network वाला। Give me a minute guys. To understand Cider, guys, please go ahead and watch those videos. ठीक है, I'm showing it to you something else here. Cider की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा प्लीज। उसका इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना जरूरी नहीं है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, भी समझ गए हाँ तो बस चलता है। एक बार वीडियोस देख लो आप लोग, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसमें जो मैंने कैलकुलेशन इन डिटेल एक्सप्लेन किया है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं, बहुत ही इजीली कैलकुलेटर्स अवेलेबल हो जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी को शौक हो तो देख लो आप। ओके, सो आई वाज सेइंग कि मेरा 5000 का रिक्वायरमेंट है, मैंने 4096 ले ली। सो ये सब एक इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से याद रख लो। सो इफ द एड्रेस स्पेस इज 4096, does it mean that I can have 4096 resources in my virtual network, including my virtual machine, storage account वगैरह सब कुछ? When I say virtual network में resources, उसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है? So the question is, interview question आता है कि if the address space is 4096, so can I use all of the addresses, or what is the number of usable IPs? This is the total range of IP and there is a usable IP. एक term है usable IP. Are you guys getting the question? यस। तो मेरा यहाँ पर है आपका 4096 जो है आपका रेंज है। ये रेंज बदलता रहेगा जो भी साइडर वगैरह आपने लिया है। 4096 आपका 20 के साइडर पे है टोटल आईपीस। मैं आपको साइडर नहीं समझ में बोल रहा हूँ अभी, ठीक है? इस सेशन का साइडर समझना ये नहीं है। जैसे somehow you understood, आपको पता है कि वो 20 और 4096 का क्या कनेक्शन है। The question here is, just give me a minute guys. Oh yeah, the question here is 4096 जो टोटल आईपीस है, इसमें से यूजेबल आईपीस कितने होते हैं? So to answer that is -5.
वो एंड जो दिस इज है, नॉट रिलेटेड टू साइडर 20 बीट एनीथिंग, जो भी आप साइडर यूज करो, जहां पर भी यूज कर रहे हो, जितना भी यूज कर रहे हो, सिंपल कैलकुलेशन है -5, जितना भी है उसमें से माइनस आप 5 कर दोगे, रिमेनिंग आपके यूजेबल आईपीज है। ठीक है, What about the first three? हाँ इस यहाँ पर भी सेम होता है, इसलिए आप कभी नहीं देखोगे कि 32 साइडर कोई यूज कर रहा है। वैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, बट इफ समवन इज आस्किंग यू कि साइडर 32 कैन आई यूज साइडर 32, नो, साइडर 31, नो, साइडर 30, नो, यू कैन नॉट। इफ यू यूज साइडर 8, ये अगर यूज करते हो तो आपको 5 मशीन्स मिलेंगे सिर्फ, और 5 आईपीज मिलेंगे विच यू कैन यूज इन योर वर्चुअल नेटवर्क। नहीं 3 ही मिलेंगे ना। सॉरी 3, 5 माइनस हो गए, 3 मिलेंगे। हाँ क्लियर है So एवरीवन? is it, yes, clear, but is it important to even understand why are those 5 deducted? हाँ, yes, yes, yes. That is obviously वो बहुत आधा अधूरा क्वेश्चन हो जाएगा जस्ट 5 का। I'm coming to that. मैं बता रहा हूँ वो कब कहाँ पर यूज होते हैं। And that is important to remember also. It is not important to understand. It is important to remember. Explanation कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, but it is important to remember, बहुत ज्यादा important है। जब भी नेटवर्किंग के अगर सेक्शन में कोई इंटरव्यूअर घुस गया ना, he will definitely ask this. तो यहाँ तक क्लियर है कि एक तो साइडर से आपका आईपी का रेंज डिसाइड होता है। How is it connected? बैकग्राउंड में कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, that I'm not teaching here. You will have to watch those videos. नहीं भी देखते हो तो that is fine. But I hope this is understood for you now, right? Then ये Yes, IPs sir. दिखने के बाद यूजेबल IPs कितने हैं, उसका कैलकुलेशन इजी है आपके लिए। सिंपली -5। अब वो जो 5 आईपी है वो जाते कहाँ पर है, राइट? दैट वाज द क्वेश्चन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को याद भी नहीं भी रखते हो पूरे के पूरे 5 आईपीस का, तो एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि ठीक है यार क्या होता है एग्जैक्टली, क्यों ये होते हैं। इसलिए आप लोग देखो जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, कोई भी, तो उसका आईपी एड्रेस शुरू होता है 04 से। यू विल नेवर सी 4 से आईपी एड्रेस शुरू होगा। कल के भी जो मशीन्स आप देख रहे थे, एंड इवन इफ आई शो यू, मैंने कुछ मशीन्स अभी बनाए थे, लिनक्स मशीन हियर 10.20.0.4, मतलब इसमें क्या मिसिंग है, 0 1 2 3 ये मिसिंग है। 0 का ना भी काउंट करो आप तो भी 1 2 3 मिसिंग है। ठीक है, सो लेट मी शो इट टू यू कि ये 5 आईपीस हम नहीं यूज करते हैं, ये अज्योर यूज करता है। हाँ बाय द वे गुड, ये जो 5 आईपीस माइनस होते हैं ना, ये नेटवर्किंग का कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ अज्योर का है। मतलब अगर अगर आप ऑन प्रिम में जाते हो ना तो आपको सारे यूजेबल है। ये अज्योर का रिक्वायरमेंट है कि 5 आईपीस माइनस होंगे। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? यहाँ तक Yes, क्लियर है? sir. ओके, नाउ वेयर आर दोस 5 आईपीस बीइंग यूज्ड? इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसको आपको रट लो, इंटरव्यू में आप बोल लो, योर आंसर विल बी क्लियर। सो वेयर आर दोस आईपीस बीइंग यूज्ड? हियर इट इज। 0 आपका यूज होता है, फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन द मशीन, मतलब इसका वर्चुअल नेटवर्क का मेरा शुरू हो रहा है 10.20.0.0 से, तो 0 मेरा यूज होता है नेटवर्क एड्रेस पे, और इसका लास्ट आईपी एड्रेस होता है 10.20.0.255, तो लास्ट वाला यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड नेटवर्क एड्रेसिंग क्या है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ये सब आपका नेटवर्क टीम कर लेगा। आपको बस एक आंसर याद करना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, देन 1 आपका यूज होता है डीएचसीपी के लिए, 2 यूज होता है आपका राउटर के लिए, और 3 जो है माइक्रोसॉफ्ट ने रिजर्व कर रखा है फॉर फ्यूचर यूजर्स और मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए। क्लियर है गाइस टू Yes, एवरीवन? sir. So I am putting a question that usable, let's say that I'm putting a question that I have 4096 total IPs. So how many will be usable IPs? And what about the remaining IPs? तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है ये वाला आंसर यहाँ पर है। आई विल जस्ट पुट द क्वेश्चन, आंसर आप लोगों को खुद यहाँ पर आकर ढूंढना है, एंड आप लोगों को इसको याद करना है। ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट आपको पूरा याद करना है, लेकिन आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी बताना शुरू कर दो ना। हाँ 5 आईपीस डेफिनेटली माइनस हो गए, व्हाई? 1 विल गो टू नेटवर्क एड्रेस, 1 विल गो टू ब्रॉडकास्ट एंड डीएचसीपी राउटर एंड मेंटेनेंस, इस तरह से भी आप बोल दो ना, तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्क की। एग्जैक्टली आप मगअप ना भी करो तो अच्छा, याद कर लो तो वेल एंड गुड, इससे बेटर कुछ नहीं। इसको एक छोटा सा जो हमारा पोस्टर आता है वो येलो कलर का है, चीट वाला, उस पर लिख के लगा भी लो आप अपनी स्क्रीन पे, पढ़ भी दो उसको, सो वेल एंड गुड। ना भी करो, इफ यू से इट तब भी काम में आ जाएगा।
Is it clear guys? इतना part Yes. clear है? Yes, sir. Yes, Okay, sir. don't get confused between this. ये बाकी सब क्या है? इसको छोड़ दो. ये सारे cider वाले हाँ. When you watch those videos and that time if you want to understand something, you can come here. As of now, just take this much for your answer. ठीक है? Yes, Okay, sir. इसमें भी जो है ना, इसमें भी ये सिर्फ मैंने बताया कि VNet और एक सबनेट का. इसमें जितने सबनेट्स अलग होते जाएंगे ना, लेट मी ओपन दिस, तो ये आपके यूजेबल आईपीज और कम होते जाएंगे. बट इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछेगा आपसे. कॉन्सेप्ट आपने एक बता दिया, सो काफी है. लेट मी ओपन दिस एंड लेट मी गो टू सम वर्चुअल नेटवर्क, एनी ऑफ द वर्चुअल नेटवर्क्स. अब ये मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क पे जाता हूँ. सी यहाँ टोटल आईपीज कितने हैं मेरे पास? 65,000. 65536, राइट. ये मेरे टोटल आईपीज है. ओके, इसके बाद इसमें से मैंने -5 कर लिए. बट व्हेन विल दैट हैपन? जब वो -5 कब होगा? जब मैं एक ही सबनेट के साथ ये कर रहा हूँ. द मोमेंट आई स्टार्ट क्रिएटिंग सबनेट, जैसे ही मैं सबनेट बनाने क्रिएट करता हूँ ना ज्यादा, सी यहाँ पर हर एक सबनेट भी मेरा जो है ना 5 आईपीस खाने लग जाता है. जैसे इस टोटल 65 को 65,000 जो आईपीस थे ना, मैं अभी सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूँ. एनसेबल के लिए मैंने एक सबनेट बना लिया, एक डिफॉल्ट सबनेट मेरा ऑलरेडी था, ये एक सबनेट है मेरा. ठीक है. व्हाई डू यू थिंक यहाँ पर 250 आईपीस अवेलेबल है? बाय द वे, एक सबनेट में मैक्सिमम आई कैन टेक 255 आईपीस. इतना समझ लो आप, एक सबनेट में मैक्सिमम आई कैन टेक 255 आईपीस. सो व्हाई डू यू थिंक यहाँ पर 250 अवेलेबल है और यहाँ पर भी? -5. वो 251 हो जाता है. आईपीस का रेंज 0 से शुरू होता है. सी Yes, तो 256 टोटल आईपीज रहते हैं ना. हाँ 256 होते हैं, राइट. यहाँ पर ऐसे 255 नंबर होगा, 256 आईपीस होते हैं. 256 में से आप -5 कर लो तो 251 होना चाहिए, राइट. Right, यूजेबल 251 मिलना चाहिए मुझको. व्हाई डू यू थिंक right. आई हैव 250 हियर? VM already created. सिंपली यहाँ पर कोई ना कोई रिसोर्स होगा, डेफिनेटली है. मेरा एक डिफॉल्ट सबनेट में एक मशीन है, एनसिबल सबनेट में एक मशीन है. क्लियर है? Okay. और ये वाला Yes. सबनेट में क्यों कम है? इसमें सिर्फ 59 क्यों है? 64 वाला है वो। बिकॉज मैंने हाँ इसका साइडर ही कम लिया है. मुझको चाहिए ही 64 आईपीस थे. यस, ये साइडर इससे दिख जाएगा आपको, और ये गूगल पे इजीली मिल जाएगा कि आपको साइडर से कितने आईपीस यूजेबल है, वो कैलकुलेटर इजीली मिल जाएगा. ठीक है. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग साइडर हियर. ये मैं आप लोगों को बताने की ट्राई कर रहा हूँ दैट एक एक सबनेट पे भी कम होता हो जाएगा. बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं है. आपको बस रिजर्व्ड आईपीएस का ये होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. दिस आर कॉल्ड अज्योर रिजर्व्ड एड्रेसेस. सो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और रिमाइंड कर देता हूँ. आई से आई हैव 4096 टोटल आईपीस. हाउ मेनी विल बी यूजेबल आईपीस एंड व्हाट अबाउट द रिजर्व्ड आईपीस? ये मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, उसका आंसर आपको नाउ यू नो हाउ टू आंसर इट. दैट टोटल में से 5 को माइनस कर लो हर एक सबनेट लेवल पे, एंड देन रिमेनिंग जो भी हो गए वो आपके रिजर्व्ड यूजेबल आईपी हो गए, एंड 5 आर रिजर्व्ड आईपीस. 5 क्यों यूज होते हैं? हर सबनेट के लिए यही काम है, हर सबनेट के लिए. ठीक है गाइस? Yes, sir. Anyone has any question? Yes, We have sir. 2 minutes left, so we'll spend Yes, these 2 sir. minutes for the question. इसी questions पे spend करते हैं. Next session हम जो हमारा VNet था उसको next step पे लेके जाते हैं. Now what we have learned, VNet pairing within same subscription. We have learned that कि ठीक है मेरा ही subscription है 4 VNet, I want them to talk to each other. कैसे करनी है VNet pairing? Then I learned कि मेरे ही tenant में 2 subscription है. ठीक है. Then how to do it? Now what we are going to learn is कि एक मेरा सब्सक्रिप्शन है, ये मेरा टेनेंट है, और एक आपका है. टोटल हम 2 अलग कंपनी है, बट कोई मर्जर हो रहा है, कोई ऑडिटिंग हो रही है. लेट्स से दैट आई एम एन ऑडिटिंग कंपनी. ठीक है. डिलॉयट इज एन ऑडिटिंग कंपनी. आईटी है साथ में एक ऑडिटिंग कंपनी में. एक्चुअली इट्स एन ऑडिटिंग कंपनी. ऑडिटिंग कंपनी है वो आपके किसी आपके पूरे अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहती है, विच मीन्स दे विल रिक्वायर सम एक्सेस ऑन योर सर्वर्स पे जो भी डेटा उनको चाहिए होगा, फाइनेंस के फाइल्स पे उनको एक्सेस चाहिए होगा, तो देयर हैज टू बी सम कनेक्टिविटी. नाउ जो मेरे ऑडिटर्स बैठे हुए हैं वो AWS का पूरा सिस्टम यूज करते हैं. आप लोग Azure पे हो, या फिर वो भी Azure यूज करते हो, आप भी Azure पे हो, लेकिन 2 अलग कंपनी है. सो हाउ टू कनेक्ट देम? या फिर वो ऑन प्रेम पे है, आप ऑन प्रेम, आप जो है Azure पे हो, हाउ टू कनेक्ट देम? या फिर माइग्रेशन का केस चल रहा है कि आपका ऑन प्रेमाइसेस के 400 सर्वर्स आपको Azure पे लाने हैं. Azure पे आपके 20 सर्वर है ऑलरेडी, ऑन प्रेम पे 400 है, उन 400 में से 200 को आपको Azure पे लाना है. सो हाउ टू कनेक्ट दोज नेटवर्क्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट सेशन. अब तक हमने जो पढ़ा विद इन Azure हम देख रहे थे कि 2 VNet को कैसे कनेक्टिविटी करनी. नाउ वी आर सेइंग कि
अलग अलग नेटवर्क्स को कैसे कनेक्टिविटी करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन के वक्त काम आएगा. So see you guys in next session. Do you want a break of 5 minutes? Yes, sir. Never. Bye. Fine. See you at 14:45. Same link.